I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country. And they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. I'm so happy that while thanking the President in my speech, I did mention about this point. And I feel vindicated today. I stand here with pride and with dignity for my film fraternity who have represented this country number of times, have won number of awards, and starting from Satyajit Ray onwards. I also want to contribute and say, I know Mr. Rajamouli very well. अरे नीरज क्यों बीच-बीच में इतना जोर दो? Yes, ma'am. The writer, he's not only the script writer, sir. He's the writer. He is the story. He's the story writer as well. He's a member of this house, and it's a great honor. There have been many, many such people from the creative world who have been nominated here in this house. पहले भी और आज भी. Yes, ma'am. Sir, ये chronic disease होती जा रही है. ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए. मैम आपकी. Thank you, Chairman, sir. This is the main Telugu industry. Kindly allow me to speak in Telugu, sir. Sir, ఈరోజు తెలుగు పరిశ్రమ ప్రపంచంలోనే ఆస్కార్ అవార్డు తెచ్చిందంటే నిజంగా కూడా దీనికి ఎవరెవరైతే ముఖ్యంగా ఉన్నారో మెయిన్ ఈ సాంగ్ చేసింది కీరవాణి గారు, అలాగే చంద్రబోస్ గారు, రాజమౌళి డైరెక్టర్ గారు, యాక్ట్ చేసింది కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తారక రామారావు గారు, రామచంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. హౌస్ అంతా కూడా పర్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనం ఒకసారి అందరం కలిసి సన్మానించేదానికి కూడా మీరు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాను సార్. ముఖ్యంగా విజయేంద్ర ప్రసాద్ ఏదైతే ఉన్నారో ఇక్కడ రాజ్యసభ మెంబర్గా వారిని ప్రెసిడెంట్ నామినేషన్లో వచ్చారు అంటే ప్రెసిడెంట్ నామినేషన్లో ప్రధానమంత్రి గారు ఎంత దూరదృష్టి చేసుకుని ఇటువంటి వాళ్ళని నామినేట్ చేసిన దానికి మరొక్కసారి ప్రధానమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ సన్మానం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం సార్. తెలుగు వాళ్ళకి మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది, చాలా బాగుంది సార్. ధన్యవాదాలు. रंजिता रंजन. सबसे पहले जैसे हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस ने बधाई दी है, मैं भी बधाई देना चाहती हूँ. एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, वहाँ पे एक और इतिहास रचा गया है कि एक इंडियन एक्ट्रेस वहाँ पर उन्होंने नाटू नाटू को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ब्लैक पहनी हुई थी सर, दीपिका पादुकोण. तो उनको भी बधाई देना चाहूंगी. साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, दीपिका पादुकोण से याद आया कि अगर हम अपना ये बॉयकॉट कल्चर है, इस ऑस्कर जीतने के बाद ये जो बॉयकॉट कल्चर चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसको खत्म करने का काम ये ऑस्कर करेंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी. और सर, बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लैक, आई यील्ड दिस स्पेस टू महबूबा माझी जी, हु हैज बीन वांटिंग टू स्पीक. सर, थैंक यू सो मच. The only culture I know is agriculture. Yes, and let us believe in that. Binoy Biswam ji. सभापति महोदय, Yes, ma'am. सबसे पहले तो मैं ऑस्कर लाकर हमारे पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ. लेकिन एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले ही साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा रहा था. उसमें 24 स्टेट्स के कलाकार साहित्यकारों में से चुनकर आए हैं लोग. लेकिन उनकी एक समस्या ये है कि उनके लिए सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाई है. मैं बता दूं कि उनको मेडिकल फ्री होना चाहिए. मैं आज के दिन जब उनके कारण हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, उनकी होल लाइफ के लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो बहुत ही आर्थिक कमी से जूझ रहे हैं. इसलिए इस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ. मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूँ कि आपने भारतीय फिल्म जगत की देश और दुनिया भर में जो धूम मची है,
RRR के नाटू नाटू ने न केवल देश बल्कि दुनिया का दिल जीतने का काम किया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ऑस्कर 95 में जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं दो अवार्ड्स पाने का काम किया है। सब फिल्म की धूम तो यहां पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूं ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड एंड इट इज जस्ट द बिगनिंग। एंड इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, and let us work together to make India the content hub of the world. Nothing is regional today. As Prime Minister say, local to global, our regional has become international, sir. That is the big achievement for India, sir. और सर इसमें बड़ी बात यह है कि नाटू नाटू तेलुगु भाषा में गाया गया था, बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं 30 क्या आज दुनिया के करोड़ों दिलों के दिल में नाटू नाटू बज रहा है, तो भारत के संगीत की धुन आज दुनिया भर में हो रही है। सर तमिल भाषा में फिल्म बनी द एलिफेंट विस्परर्स। सर छोटी बात नहीं सर, छोटे बजट के साथ बनी, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन आज उसको भी जो मुकाम हासिल हुआ है, मैं अपनी ओर से, क्योंकि ये जिम्मेदारी मोदी जी की सरकार में मिली है, हम कह सकते हैं सर हमने लगातार, जब टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी हुआ तब राजा मौली जी और उनकी पूरी टीम, उस समय सर हमने वर्ल्ड प्रीमियर वहाँ पे प्रीमियर करने का काम किया, मंच दिया भारतीय फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए। कान फिल्म फेस्टिवल में भी सर 75 ईयर जब भारत और फ्रांस ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज के मनाए, पहली बार सर किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला, तो भारत को वो पिछले वर्ष हमें यहाँ पे होने का काम हुआ सर। सर एक के बाद दूसरा वो क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने फिल्मों के क्षेत्र में अच्छा किया। सर बस 2 मिनट सर, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। अगर अभी सर पिछले साल सर सेंट्रल एशिया का डेलीगेशन, Sir, one issue which we have conveniently forgotten. Sir, when a cinema or documentary of artistic nature of such a magnitude is produced, it is not because of one person or two persons, but it is because of the hard work that has been put in by hundreds of people, technicians, whether be it technicians, artists, or etc., etc. Therefore, the appreciation that is being offered or conferred on this, it should go to everyone who has worked for the film or documentary, as the case may be, sir. And further, sir, irrespective of the language, irrespective of the religion, caste, creed, there are artists everywhere. And therefore, this regional feelings or sub-regional feelings or linguistic feelings should not